Hello students, welcome to all in social science class once again. Dear students, in previous module we have discussed the two important kingdoms of North India in medieval period, Rashtrakutas and Palas. Today in this module we will discuss the next important kingdom of North India, that is the Pratiharas, and we will also discuss in detail the administration of these three kingdoms in North India. Okay, let's start. Dear students, let's discuss about the Pratiharas. These were Gurjara Pratiharas as they belong to Gujarat. This dynasty ruled over Gujarat and southwest Rajasthan. The founder of Pratiharas was Nagbhata I, and the most important ruler of this dynasty was Mihir Bhoj. He occupied Kannauj in 836 Christian era. Over this occupancy, continuous fighting occurred and weakened the Pratiharas empire, and it broke into a number of smaller kingdoms. बेटा, प्रतिहारास को गुर्जारा प्रतिहारास भी कहा जाता है, शायद इसलिए कि वो गुजरात से उत्पन्न हुए थे। उनका मूल स्थान गुजरात था। उन्होंने गुजरात और साउथ वेस्टर्न राजस्थान पर रूल किया। प्रतिहारा एम्पायर के फाउंडर नागभट्टा I थे और इस डायनेस्टी के यानी इस वंश के सबसे ग्रेट रूलर मिहिर भोज थे। उन्होंने 836 सीई में कन्नौज पर अटैक किया और उसे जीतकर अपने कब्जे में कर लिया। कंटिन्यूस बैटल की वजह से प्रतिहारा एम्पायर काफ़ी वीक हो गया था और ये छोटे छोटे किंगडम में डिवाइड हो गया। Pratiharas were great warriors and fought many battles with Palas and Rashtrakutas. प्रतिहारास महान योद्धा थे। उन्होंने पालास और राष्ट्रकूटास के साथ कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। And you know, these fightings disintegrated Pratiharas into Chauhans of Rajasthan, Gadwals of Kannauj, Solankis of Gujarat, Parmaras of Malwa and the Chandels of Bundelkhand. यानी प्रतिहारा एम्पायर इन 5 किंगडम्स में बट गया। Dear students, let's discuss the achievements of Pratiharas. Mihir Bhoj, who was a great ruler of Pratihara, was also a great scholar. During this time, regional languages developed at a very fast rate under Pratihara's rule. Do you know बेटा, प्रतिहारास किंग भी आर्ट एंड लिटरेचर के महान संरक्षक थे, यानी कला के प्रेमी थे। मिहिर भोज, जो कि प्रतिहारा डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर थे, वो एक ग्रेट स्कॉलर यानी एक महान विद्वान भी थे। प्रतिहारा रूल के टाइम रीजनल लैंग्वेज की डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुई। रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप्ड लाइक गुजराती, मराठी, बंगाली, असमीज एंड ओडिया। मराठी एंड गुजराती वर स्पोकन इन western part of India, while Bengali and Odia became popular in eastern India. The most beautiful temples of Khajuraho, Kanchipuram, Tanjavur, Bhubaneswar, Puri and Konark were built during the rule of Pratiharas. Description of history was explained through paintings on the walls of temples during this period. Art of miniature means description of history through paintings, means very small paintings. So students, प्रतिहारास रूल के टाइम रीजनल लैंग्वेजेस यानी क्षेत्रीय भाषाएं डेवलप हुई। जैसे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में मराठी और गुजराती लैंग्वेजेस बोली जाती थी, जबकि ईस्टर्न इंडिया यानी पूर्वी भारत में बंगाली, ओडिया और असमीज लैंग्वेज बोली जाती थी। खजुराहो टेम्पल, कांचीपुरम, तंजावुर, भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क जैसे ब्यूटीफुल टेम्पल्स प्रतिहारास रूल के टाइम ही बनाए गए थे।
You can see the picture of beautiful temple Khajuraho in this picture. आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग भी इसी टाइम में शुरू की गई थी, यानी हिस्ट्री को पेंटिंग्स के थ्रू डिस्क्राइब किया गया था, स्मॉल पेंटिंग्स के थ्रू. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, ट्राइपेराटाइट स्ट्रगल. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्राइपेराटाइट स्ट्रगल. Students, in medieval period, Kannauj was a symbol of power in North India. So the three kingdoms, Rashtrakutas, next one is Palas and Gurjara Pratiharas. So the three kingdoms, Rashtrakutas, Palas and Pratiharas, began to fight to control over, you can see here, Kannauj. This fight between these three kingdoms was known as tripartite struggle. So dear students, उस टाइम कन्नौज जो कि नॉर्थ इंडिया में पावर का सिंबल माना जाता था, यानी शक्ति का प्रतीक माना जाता था. सो ये तीनों किंगडम्स, राष्ट्रकूटास, पालास और गुर्जारा प्रतिहारास, कंटिन्यूसली कन्नौज को पाने के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे. इन तीनों किंगडम्स के बीच जो स्ट्रगल था उसे ही ट्राइपेराटाइट स्ट्रगल कहा जाता था. ट्राई मीन्स थ्री और पैराटाइट मीन्स पार्ट्स, यानी तीन पार्ट्स में, थ्री किंगडम्स में ये स्ट्रगल चल रहा था, राष्ट्रकूटास, पालास एंड प्रतिहारास के बीच. ईच ऑफ दीज किंगडम्स सक्सीडेड बट द कंटिन्यूस बैटल weakened all these three empires, and hence all these three empires disintegrated into a numerous small kingdoms. बेटा ये तीनों किंगडम्स कन्नौज को पाने में तो सक्सेसफुल रहे क्योंकि तीनों के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ लगभग इक्वल थी, बट कॉन्टिन्यूसली बैटल की वजह से, यानी लगातार लड़ाइयों में उलझे रहने की वजह ने उन्हें वीक कर दिया, और लास्ट में इन तीनों ग्रेट पार्ट्स का डिक्लाइन हो गया, मीन्स पतन हो गया, और उनके एम्पायर कई स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड हो गए, यानी कई छोटे छोटे राज्यों में बिखर गए. स्टूडेंट्स, दिस ट्राइपेराटाइट स्ट्रगल paved a new history around the 9th century era. The tripartite struggle led to disintegration of Rashtrakutas, Palas and Pratiharas. During 10th century CE, changes took place. Main changes were the North India came into contact with Western and Central Asia. Second thing that happened, that Rajputs emerged as a power who were constantly at a war with one another. Finally, the continuous wars created political instability, which was the main cause of the beginning of Turkish invasion in North India. So my dear students, 9th century के अराउंड पूरा नॉर्थ इंडिया राष्ट्रकूटास, पालास और प्रतिहारास की पार के रूप में कई छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया, और 10th सेंचुरी के टाइम मेडिवल इंडिया में कई इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए. फर्स्ट चेंज, दैट इज नॉर्थ इंडिया वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के क्लोज कॉन्टेक्ट में आया. सेकंड, मोस्टली किंगडम्स जो कि राजपूतों के रूल के अंडर आते थे वो कॉन्टिन्यूसली वार में एक दूसरे के साथ उलझे रहे. एंड फाइनली इन कॉन्टिन्यूस वार्स ने वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी, यानी राजनीतिक स्थिरता नहीं रही, जो कि नॉर्थ इंडिया में तुर्कों के अटैक्स का मुख्य कारण बना. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से तुर्क लोग वहाँ ईजिली घुस गए और उन्होंने इन राज्यों पर अटैक करना शुरू कर दिया. राजपूत्स प्लेड अ ग्रेट रोल इन मेडिवल इंडिया. दे वर नोन फॉर देयर ब्रेवरीज, but disputes over their origin. The word Rajput means son of a Raja or a king. Rajputs do not belong to royal families. They belong to different clans which are known as Suryavanshi or Chandravanshi. The students, medieval India में राजपूत ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
वो अपनी ब्रेवरी के लिए यानी बहादुरी के लिए फेमस थे। बट राजपूतों के ओरिजिन के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में कोई बात क्लियर नहीं है कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ। राजपूत वर्ड का मीनिंग है सन ऑफ राजा और अ किंग, यानी राजा का बेटा। बट सभी राजपूत रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, वो अलग अलग वंश से बिलोंग करते थे। कुछ राजपूत सूर्यवंशी फैमिली से और कुछ जो है चंद्रवंश जो है उसके रूप में जाने जाते हैं। सम ऑफ द हिस्टोरियंस बिलीव दैट राजपूत्स आर द डिसेंडेंट्स ऑफ फॉरेन ट्राइब्स। Rajputs were born from 4 clans of fire, that is Agnikulas. 4 clans were the Parmaras, belong to Malwa Plateau. Pratiharas belong to Rajasthan and Gujarat, and Chauhan belongs to Ajmer. Chalukyas of Gujarat. These were about 36 clans of Rajputs. बेटा कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि राजपूत फॉरेन ट्राइब्स हैं, मीन्स विदेशी जनजातियों के वंशज हैं जो कि इंडिया में आकर बस गए हैं। यह भी माना जाता है कि राजपूत के 4 क्लैंस, 4 वंश अग्निवेदियों से पैदा हुए हैं, यानी फायर से पैदा हुए हैं। सो इनको अग्निकुलों के रूप में जाना जाता है। ये 4 क्लैंस थे। फर्स्ट वन इज परमाराज, जो कि मालवा प्लेटू से बिलोंग करते थे, यानी मालवा प्लेटू मध्य प्रदेश में रहते थे। और प्रतिहारास राजस्थान और गुजरात से बिलोंग करते थे। चौहान्स अजमेर से बिलोंग करते थे और चालुक्यास गुजरात से। राजपूत के टोटल 36 क्लैंस थे, यानी 36 वंशज थे। द स्टूडेंट्स, Chauhans of Ajmer played an important role among all the Rajput clans. Prithviraj Chauhan was the most powerful king in this dynasty. He came to throne in 1177 CE. He fought many battles and blocked Muhammad Ghori of Afghanistan in the Battle of Tarain near Bhatinda. He is the hero of folk tales or lok katha in Hindi. On his bravery, Chand Bardai composed a poem पृथ्वीराज रासो। बेटा सभी राजपूत वंशजों में अजमेर के चौहान्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। चौहान किंग्स ने गुजरात और राजस्थान के कुछ पार्ट्स पर रूल किया। पृथ्वीराज चौहान राजपूत डायनेस्टी के मोस्ट पावरफुल किंग थे। वे 1177 सीई में राजगद्दी पर बैठे। उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और विजय प्राप्त की। भटिंडा के पास तराइन के युद्ध के मैदान में अफगानिस्तान के मोहम्मद गोरी को ब्लॉक कर दिया। और आज भी पृथ्वीराज चौहान इंडिया की फोक टेल्स यानी लोक कथाओं के हीरो हैं। चंद बरदाई ने एक पोइम जिसका नाम पृथ्वीराज रासो लिखी है, जो उनकी ब्रेवरी पर बेस्ड है, मीन्स जिसमें उनकी बहादुरी का वर्णन है। द फाइट और वी कैन से स्ट्रगल over supremacy of Rajputs attracted the Muslim invaders. Rajputs failed and joined hands with Arab invaders. यानी अपनी सुप्रमेसी के लिए स्ट्रगल और कॉन्स्टेंट वार्स और वी कैन से कॉन्टिन्यूसली फाइटिंग से राजपूतों के बीच शत्रुता और असमानता पैदा कर दी। इससे मुस्लिम इन्वेडर्स यानी मुस्लिम आक्रमणकारी इंडिया में अटैक करने के लिए अट्रैक्ट हुए। अरब आक्रमणों से भारत की रक्षा के लिए राजपूत एक दूसरे से हाथ मिलाने में फेल हो गए। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द गवर्नेंस इन नॉर्थ इंडिया अंडर राजपूत्स। इफ वी टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, द किंग वाज द हेड and assisted by the different officers. Military and judiciary was under the king. Huge amounts were spent to build up strong armies. बेटा if we talk about administration, तो नॉर्थ इंडिया में जो किंग है सबसे पावरफुल पर्सन होता था, मीन्स ही वॉज द हेड
और डिफरेंट ऑफिसर्स उनकी हेल्प करते थे। जैसे आज के टाइम में कंट्री का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है और उनकी हेल्प के लिए डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं। सिमिलरली उस टाइम कंट्री का हेड किंग होता था और उनकी हेल्प के लिए डिफरेंट ऑफिसर्स होते थे। पूरे एम्पायर को, साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था। जैसे आज अपने स्टेट्स होते हैं ना, पहले स्टेट्स को प्रोविंसेस यानी प्रांत कहा जाता था। किंग मिलिट्री और जुडिशरी दोनों का ही हेड होता था। किंग ने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफ़ी धन खर्च किया। If we talk about the economy of that time, so there was a great economic disparity. I mean to say economic disparity or dissimilarity was there. In different social groups, common people lived in villages had led a life of misery, whereas royal families, officials and traders were rich and prosperous. The temples were the centers of riches, so attracted a lot of invaders. Students, medieval period में नॉर्थ इंडिया के डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, यानी आर्थिक विषमता थी, और वी कैन से डिसिमिलरिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। रॉयल फैमिलीज, ट्रेडर्स और ऑफिसर्स तो बहुत ही रिच थे, प्रोस्पेरस थे, जबकि विलेजेस में रहने वाले लोगों की कंडीशन काफ़ी खराब थी, वो पुअर थे। टेम्पल्स जो कि धन का केंद्र थे, टेम्पल्स ने आक्रमणकारियों को काफ़ी अट्रैक्ट किया। आक्रमणकारी मंदिरों से धन लूटने के लिए वहाँ अटैक करते थे। आपने सोमनाथ टेम्पल का नाम भी सुना होगा कि आक्रमणकारियों ने सोमनाथ टेम्पल की मूर्ति तोड़कर वहाँ से काफ़ी धन लूट लिया था। फ्यूडल सिस्टम वॉज देयर। फ्यूडल सिस्टम मीन्स द होल लैंड ऑफ सेवरल विलेजेस वॉज अंडर अ लैंडलॉर्ड who were known as Thakurs or Rais. Thakurs or Rais provided military help to the king during battle. As the power of central authority weakened, then these feudals established powerful and independent empires. बेटा, नॉर्थ इंडिया में फ्यूडल सिस्टम काफ़ी प्रचलित था। कोई सेंट्रल अथॉरिटी उस टाइम में नहीं थी। किंग्स अपनी लैंड का कुछ पार्ट एज ए गिफ्ट ऑफिसर्स को दे देते थे, जो कि ठाकुर्स और राइज के रूप में जाने जाते थे। और ये ठाकुर्स और राइज युद्ध के टाइम किंग को अपनी मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, यानी अगर कभी युद्ध की सिचुएशन हो जाती थी तो ठाकुर्स और राइज किंग को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे एज ए आर्मी की फॉर्म में। फ्यूडल सिस्टम से कई एम्पायर्स डिक्लाइन हो गए, ख़त्म हो गए, क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स ने किंग को लैंड रेवेन्यू का बहुत ही कम हिस्सा दिया। मीन्स लैंड से होने वाली इनकम को टैक्स की फॉर्म में राजा को वो बहुत कम हिस्सा देते थे। इससे किंग्स की पावर कमज़ोर हो गई। इसके अलावा कई फ्यूडल लॉर्ड्स लाइक चौहान्स, परमारास, वो बहुत ही पावरफुल हो गए और उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट एम्पायर्स इस्टेब्लिश कर लिए। द स्टूडेंट्स, if we talk about the society, then there was a rigid caste system. The king, feudal lords and Brahmins enjoyed a life of luxury. Shudras and other people cultivated the land. Women were living a pitiable life and deprived of education. Polygamy, that is multi-marriage by men. Sati and child marriages were common during this period. स्टूडेंट्स, इंडिया में रिजिड कास्ट सिस्टम यानी कठोर जाति व्यवस्था के कारण इंडियन सोसाइटी का डिवीज़न हो गया, यानी भारतीय समाज कई वर्गों में बट गया। किंग, फ्यूडल लॉर्ड्स और ब्राह्मण्स ये तो हाई क्लास में आते थे और लग्जरी लाइफ जीते थे, बड़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे, जबकि शूद्रास लैंड कल्टीवेट करते थे। इट मीन्स भूमि पर खेती करने का काम मुख्यतः शूद्रों के द्वारा किया जाता था। वुमेन की लाइफ भी बहुत दयनीय थी, उनको एजुकेशन लेने का कोई राइट नहीं था। सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज और पॉलीगेमी ऐसी प्रथाएं उस टाइम में कॉमन थी, जिससे वुमेन की कंडीशन काफ़ी खराब हो गई। सती सिस्टम मीन्स जब किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी
तो उसको भी अपने पति के साथ चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। चाइल्ड मैरिज बाल विवाह, बहुत ही कम उम्र में मैरिज कर देना। पॉलीगेमी मीन्स एक से ज़्यादा शादियाँ करना, यानी बहुपत्नी प्रथा। तो इस टाइप के सिस्टम्स ने वुमेन की कंडीशन को बहुत ही बदतर बना दिया। द स्टूडेंट्स, राजपूत्स वर्शिप गॉड्स विष्णु एंड शिवा, goddesses like Kali, Lakshmi and Durga. The Rajput kings gave land as a gift to Brahmins, which was known as Brahmadeya or Agrahara. During this period, Hinduism became more popular. The Buddhists fled away in Southeast Asia. This was a period of Bhakti movement, and many Bhakti saints like Kabir, Mirabai, Chaitanya Mahaprabhu preached devotion to God, opposing to social discrimination and superstitions. राजपूत बेटा मेनली भगवान विष्णु और शिव की पूजा करते थे और देवियों की भी वो पूजा करते थे, लाइक काली, लक्ष्मी और दुर्गा। राजपूत किंग ने ब्राह्मणों को लैंड एज ए गिफ्ट दी, जिसे ब्रह्मदेय और अग्रहारा कहा जाता था। इस टाइम पीरियड में हिंदू धर्म बौद्ध धर्म से ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। कई बुद्धिस्ट वहाँ से भाग गए और उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में शरण ली, जब टर्क्स पीपल ने नालंदा की मोनेस्ट्री यानी मठों पर हमला किया। इस टाइम पीरियड में भक्ति सेंट्स ने भगवान की भक्ति का प्रचार किया और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिशन और नैरो माइंडनेस को अपोज किया। मीन्स समाज में होने वाले भेदभाव, अंधविश्वास और नैरो माइंडनेस का विरोध किया। Let's talk about education. Superstitions and narrow-mindedness were common. Elementary education, or you can say primary education, was given through temples and monasteries, well-known centers of higher education like Nalanda and Vikramshila were there. In these centers, the study of philosophy and religion was given more importance. Reasoning subjects like mathematics and science were ignored. Regional languages like Marathi, Gujarati and Bengali developed. Sanskrit was the language of philosophers. Buddhists and Jains used Pali and Prakrit language for writings. The students, here you can see the picture of Nalanda University, where the education related to religion was provided. बेटा अंधविश्वास और नैरो माइंड एजुकेशन के फील्ड में एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल थी, बाधा थी। प्राइमरी एजुकेशन सिर्फ टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज यानी मठों के थ्रू दी जाती थी और नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन के इम्पोर्टेंट सेंटर्स बन गए। उस टाइम फिलोसफी और रिलीजन को तो इम्पोर्टेंस दी गई, बट मैथमेटिक्स एंड साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को इग्नोर किया गया था। मराठी, गुजराती और बंगाली जैसे रीजनल लैंग्वेज डेवलप हुई, क्योंकि ये लैंग्वेजेस ऐसी थी जिनमें भक्ति सेंट्स ने उपदेश दिए, यानी भक्ति संत अपने उपदेशों के लिए लोकल और रीजनल लैंग्वेज का यूज़ करते थे। संस्कृत फिलोसफर के द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज थी। बुद्धिस्ट और जैन्स पाली और प्राकृत लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज को अपनी धार्मिक बुक्स लिखने के लिए यूज़ करते थे। Let's now discuss about the art and architecture. We can find the paintings of North India during medieval period in the form of murals engraved on the walls of palaces, common life painted in caves, and ethics, or we can say moral values on temples. The Jain monks developed the art and miniature, which means small pictures drawn to illustrate books. The Lingaraj temple and the Mukteshwar temple at Bhubaneswar and Sun temple at Konark are the excellent example of architecture of medieval period. So North India में की जो पेंटिंग्स के जो एग्जाम्पल बेटा हम पैलेसेस यानी महलों की दीवारों पर, गुफाओं में और मंदिरों की दीवारों में देख सकते हैं। बंगाल के जैन मॉन्क्स ने और पेंटर्स ने मिनिएचर यानी स्मॉल पेंटिंग्स की कला विकसित की। इट मीन्स बुक्स को ड्रॉ करने के लिए बनाई गई स्मॉल पिक्चर्स।
मेडिवल पीरियड के टाइम आर्किटेक्चर के एक्सीलेंट एग्जाम्पल भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल और मुक्तेश्वर और कोणार्क में सन टेम्पल. So these are the best example of architecture in medieval period. Let's discuss about the trade of medieval period. During this period, India developed trade relation with the countries of East, Southeast, West, Central Asia and European countries. This relation paved a way for the foreign powers like Afghans, Turks and Mughals to control over India. Dear students, इंडिया ने ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल एशिया और यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस बनाए. इन रिलेशंस के थ्रू ये फॉरेन पार्ट्स लाइक अफगान्स, टर्क्स और मुगल्स के क्लोज कांटेक्ट में आ गए और बाद में ये फॉरेन पार्ट्स इंडिया में अपना रूल इस्टेब्लिश करने में सक्सेस हो गई. उन्होंने ईजिली इंडिया पर अपना कंट्रोल कर लिया. Dear students, do you know the world famous Khajuraho temple was built by Chandels, rulers of Bundelkhand, who were the feudal lord of Pratiharas, and these temples are decorated with beautiful sculptures. So beta, world famous Khajuraho temple बुंदेलखंड के रूलर्स चंडेल्स के द्वारा बनाया गया था और इन टेम्पल्स को बहुत ही ब्यूटीफुल मूर्तियों के थ्रू डेकोरेट किया गया था. The students, through this chapter we can conclude that during medieval period there was no strong central authority to govern our country. Small kingdoms were busy in fighting with each other without knowing the destiny. Some traitors, or you can say Gaddar, joined hand with foreign powers and invited them to attack on India. Due to this, the invaders from northwest like Afghans, Turkish and Mughals successfully ruled our country. Dear students, this was all about the medieval period of our Indian history. Thank you. Stay blessed. Stay happy.